Good morning, students. My name is Dr. Preeti Sharma. I am Assistant Professor in Kamal Institute of Higher Education Advanced Technology from GGS IPU. So today I am going to discuss on the topic curriculum concept and its meaning. So we all know what is curriculum. Curriculum is a planned activity. With the help of curriculum, we can achieve our goals. So curriculum is derived from the Latin word currere, meaning is to run. It is a runway or a race course referring to the course of deeds and experiences through which children grow and mature in becoming adults for success in adult society. It is totality of all the learning to which students are exposed during their study in the school. ये वो लर्निंग है जो बच्चे अपने स्कूल के अंदर सीखते हैं और एक्सपोज करते हैं अपनी लर्निंग को, और वो लर्निंग क्या होती है, सोसाइटी में एक हमारा पार्ट प्ले करने के लिए हमारी हेल्प करती है. इट इज़ कंटेंट प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी. करिकुलम इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी intended learning outcomes, cultural preservation, experiences, agenda for social reconstruction. Curriculum help for social reconstruction, cultural preservation. With the help of curriculum, we can transmit our culture from generation to generation. So there are different meanings of curriculum according to the student, teacher, principal, parent. So first of all, according to the student, for students, what is curriculum? इट इज़ द थिंग द टीचर मेक अस लर्न. जो चीज़ें उनको पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करिकुलम है. फॉर टीचर, द कोर्सेज ऑफ स्टडी प्रोवाइडेड अस टू फॉलो. जो हमें कोर्सेज की लिस्ट दी जाती है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, वो हमारे लिए करिकुलम है. फॉर प्रिंसिपल, द कोर्सेज फॉर विच यूनिट्स ऑफ क्रेडिट्स आर गिवन. किस कोर्स को कितने क्रेडिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये करिकुलम का पार्ट है. For parents, the facts that are in the textbooks. According to parents, the facts are prescribed in the textbook is a curriculum. So curriculum is the heart of schooling because all schools are framed and planned curriculum design. It is a curriculum. All the activities, scholastic and non-scholastic, included in the curriculum. So we can say that curriculum is the heart of schooling. It is totality of all the learning to which students are exposed during their study in the school. ये total learning है जो हम स्कूल के इंडोर में और आउटडोर में. इट मीन्स कि जो हम स्कूल के अंदर और बाहर करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किसके अंदर आती हैं, उस एक्टिविटीज़ से हम जो भी लर्निंग करते हैं वो सारी हमारी करिकुलम के अंदर आती है. वो सारा हमारा करिकुलम का पार्ट है. द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू कनिंघम. इट इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट. Tool is a curriculum, artist is the teacher. So with the help of curriculum, teacher can mold his material. Material means pupil in accordance with his ideal in his studio. It means change the pupil's behavior according to the school environment. According to G. Haas, the curriculum is all of the experiences that individual learners have in a program of education whose purpose is to achieve broad goals and related specific objectives. So curriculum का एक पर्पस होता है कि वो क्या करे, हेल्प करे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए. कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इसके कुछ ब्रॉड गोल्स हों और जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे. विच आर प्लान टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च और पास्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. जो हमारा करिकुलम है उसका पहले से एक फ्रेमवर्क कर लिया जाता है, उसको पहले से डिज़ाइन कर लिया जाता है कि हमें इस करिकुलम को कैसे बच्चों को किस स्ट्रेटजी से, किस मेथडोलॉजी से हमें बच्चों को देना है, किसको हमें थ्योरी पार्ट में देना है, किसको हमें प्रैक्टिकल पार्ट में इंक्लूड करना है. एवरीथिंग इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम. So now the features of curriculum characteristic. First one is fulfillment of objective. Objective ऐसा हो जो help करे हमारे objectives को fulfill करने में, जो हमारे specific objective हो जिससे हमारे broad जो goals हैं वो achieve हो. हमारा curriculum ऐसा होना चाहिए. Determined by factors. curriculum हमेशा हमारी society की needs के according, demands के according होना चाहिए. इसके ये factors जो है हमारी society के according हो, जैसे हमारी society है उसी के according हमें अपने curriculum में changes
करते रहना चाहिए। हमारा जो करिकुलम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहना चाहिए। कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक अच्छा करिकुलम वही है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कुछ लोगों को ध्यान में रखकर करिकुलम को प्रिपेयर करना है। करिकुलम इज़ फॉर एवरेज स्टूडेंट, करिकुलम इज़ फॉर लो एवरेज स्टूडेंट, करिकुलम इज़ फॉर अपर एवरेज स्टूडेंट। सो इट मीन्स करिकुलम जो है डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैटर करे। प्री प्लान बट कैन बी चेंज्ड, हमारा करिकुलम प्री प्लान्ड है, हम सभी जानते हैं करिकुलम इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी, प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, नॉट बी रिजिड। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसको हम जैसा चाहें चेंज कर ले। ऐसा नहीं कि जो हमने रूल्स या रेगुलेशंस या डिज़ाइन से एक बार प्रिंसिपल्स नॉर्म्स हमने फिक्स कर दिए उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी वी कैन चेंज इन करिकुलम। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट, करिकुलम इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन ब्लू प्रिंट। पहले से सब चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए कि किस कंटेंट में से कितने नंबर का कैसे टॉपिक आएगा, ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इट इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ टीचर, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ टीचर। टीचर के हैंड में एक टूल है, क्योंकि करिकुलम के थ्रू टीचर क्या करती है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाती है, उसके बिहेवियर को मोल्ड करती है। मोर देन टीचिंग एंड लर्निंग, करिकुलम ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी है, इसीलिए इसको टीचिंग लर्निंग से मोर देन कहा गया है, क्योंकि इसके थ्रू सिर्फ हमारा फोकस बच्चों को टीचिंग और लर्निंग कराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमें उसकी स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक दोनों एस्पेक्ट्स को हमें इम्प्रूव करना है, उसमें मतलब बेटरमेंट लाना है। डिस्क्राइब एनवायरनमेंट इन मोशन, इसको हमें मोशन में जो भी चेंजेस हों वो हमें करते रहना है। हमें एनवायरनमेंट को, वहाँ की जोग्राफिकल एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। ऑल लर्निंग इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल, जितनी भी लर्निंग हम स्कूल के अंदर या बाहर करते हैं वो सारी हमारी किस में आती है, करिकुलम में आती है। इसलिए करिकुलम क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसाइड इन द स्कूल कैंपस एक्टिविटी है, आउटसाइड एक्टिविटी जितनी भी हम करते हैं वो भी सारी हमारी लर्निंग में आती है और वो भी हमारी करिकुलम का पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज नीड ऑफ करिकुलम, अब हमें करिकुलम की ज़रूरत क्यों है, करिकुलम को फ्रेम क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात हम करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि करिकुलम हमारी क्या करता है, नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करे। हम नेशन का एक हिस्सा है, हम करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करें कि जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक वे से सोचें और फिर नेशन की डेवलपमेंट में क्या करें, हेल्प करें। रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, करिकुलम ऐसा हो जो हमारे वोकेशनल और टेक्निकल जो मतलब अपडेशन है उसको अपडेट करता रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का और वोकेशनल एजुकेशन का यूज़ होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जो भी आज की डिमांड्स हैं उसको अगर हम करिकुलम में अपडेट करेंगे तो वो हेल्प करेगा हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में। इसलिए करिकुलम की ज़रूरत हमें इसीलिए, अगर करिकुलम नाम की चीज़ नहीं होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज नहीं होगा, हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट में चेंजेस नहीं आएंगे, हमारे इमोशंस में चेंजेस नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की, नेशनल इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ करिकुलम, क्योंकि करिकुलम की ज़रूरत हमें इसीलिए है क्योंकि हमें नेशनल इंटीग्रेट करना है। हम एक कंट्री से पढ़ते हैं, दूसरी जगह पर जॉब करते हैं, या एक नेशन से हम पढ़े दूसरी स्टेट में हम गए जॉब करने के लिए, इससे हमारा क्या है, इंटीग्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपस में अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इसीलिए भी हमें करिकुलम की ज़रूरत है। करिकुलम ये सारी चीज़ें पहले से क्या करता है, फ्रेम करता है। मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को मॉडर्न बनाने में हमारी हेल्प करता है। मॉडर्न इन द सेंस जो हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज आता है, हम रिजिड तो नहीं है, हम अपने मतलब कल्चर को लेके रिजिड नहीं है, हमें क्या करना है, टाइम के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस लाना है, हमें रिजिड नहीं होना। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे कल्चर्स हैं, उनको हम प्रिजर्व ज़रूर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ उसमें चेंज लाते हैं। जैसे टाइम की डिमांड होती है वैसे उसके अंदर चेंज लाना, इसीलिए हमें करिकुलम की ज़रूरत है, ताकि वो सोसाइटी में वो चेंजेस ला सके, सभी लोगों को उससे अवेयर करवा सके। विदाउट करिकुलम आपके पास और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सोसाइटी को अवेयर करवा पाओगे या उनकी सोच में आप चेंज ला पाओगे। पर्सनल डेवलपमेंट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, क्योंकि करिकुलम का सबसे पहला काम है आपको डेमोक्रेटिक लाइफ देना। डेमोक्रेटिक वे से आप सोचोगे तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, और पर्सनल डेवलपमेंट होगी तो आप क्या करोगे, हेल्प करोगे अपनी नेशन की डेवलपमेंट में। सो ये सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी डेमोक्रेटिक लाइफ, आपकी नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, इन सबको अपडेट कौन करता है, करिकुलम करता है। एजुकेशन ऑफ ऑल मैन, करिकुलम सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक
पर्सन के लिए है। करिकुलम की आवश्यकता हमें इसीलिए है क्योंकि हम सभी लोगों को इक्वल एजुकेशन देना चाहते हैं। एजुकेशन ऑफ होल मैन है, पूरी शिक्षा है ये नहीं कि सिर्फ हम किसी एक एस्पेक्ट को डेवलप कर रहे हैं करिकुलम के थ्रू। करिकुलम के थ्रू हम क्या करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करते हैं। सो इट मीन्स कि करिकुलम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करिकुलम को डिज़ाइन करके ही हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो करिकुलम इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट for inculcate the values among the students and it is helpful for the all round development of the students. Okay, thank you students, have a nice day.